Now that we've spoken about acupuncture, I want to venture into another territory that you're very, very good at, Ayurveda. To simply explain to someone what is a dosha in our body and how many different doshas do we have? You know, there is Vata, Pitta and Kapha. At the starting of this episode, we discussed about the 5 elements. Right. So Vata is nothing else but wind plus ether, Akash Tattva. Okay. Pitta is water plus heat. And Kapha is earth plus water. Okay. So again, Ayurveda is also working on these 5 elements only. Right. व्यक्ति तिथ्या प्रकृति, यानी कि जैसा अलग अलग लोग होते हैं उनकी प्रकृति भी अलग अलग होगी. तो किसी में विंड एक्सेस होता है, किसी में आकाश तत्व का एक्सेस होता है, किसी में हीट ज़्यादा होती है, फायर. This is from birth? From birth. They are From born birth. with it. You're born with it. Yeah, you're born with it. Originally, that is what we are born with. It doesn't change. Right. But at the end of the life, it goes on increasing. That tattva goes on increasing. कोई वात प्रकृति का होगा तो उसको आर्थराइटिस हो जाएगा, वो लाइक उसके बोन्स का ही प्रॉब्लम होता दिखाई देगा. कोई कफ है तो उसको आप देखोगे कि ऐसे लगेगा कि उसके में कफ, या तो वो बहुत मोटा होगा या कफ प्रधान जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो सारे प्रॉब्लम्स हो गए. या तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे इतना बुढ़ापे में इतना कफ हो जाता है एज इफ इट इज़ गेटिंग मैन्युफैक्चर. यू विल कहाँ से आ रहा है इतना कफ, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं. So these are called as doshas in the body. And when a person comes to us, goes to the Ayurveda, any Ayurveda Acharya, with any kind of a problem, even if for the digestion or simple acidity होए या simple थकान होए, for that also when the person goes to Ayurveda Acharya, he sees the pulse and he says that हाँ क्या बीमारी है, हाँ okay. उसको उस बीमारी से कुछ लेना देना नहीं है उसको, because those are the symptoms na, that's what we discussed. Correct. Those are the symptoms. What we need to balance is this vata pitta kapha only. Right. So you've told me about vata and kapha. If somebody is of pitta prakriti, what will manifest in their body? It will be heat excess, हाइपर एसिडिटी. बहुत कम लोगों में होता है कि बहुत ज़्यादा हीट, अल्सर्स, ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर हीट प्रोमिनेंट दिखेगा. इन द आईज ऑल्सो. पित्त भी पूरे शरीर में सब तरफ है, जो तेज है जो हम देख पाते हैं, दैट इज पित्त. कफ इज देयर, घुटने में भी कफ है, इसलिए तो उसका मूवमेंट है. राइट. तो वात पित्त कफ अलग अलग कहीं नहीं है, सब तरफ है, पूरी बॉडी में है. राइट. लेकिन कुछ चीजें जहाँ पर के वो उसका एक प्राधान्य है, उसका कंट्रोल है कुछ ऑर्गन्स पे. सो बेसिकली व्हाट यू आर टेलिंग मी इज इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट दोषा आई एम बोर्न विथ, I can actually change a lot of things in my life. Yes. In terms of also avoiding certain or mitigating, let's not say avoiding, mitigating certain diseases that could manifest in my body. Yes. That's correct? Yes. समान से समान की वृद्धि होती है और विरुद्ध से ह्रास. सो अगर कोई वात प्रधान इंसान है उसको वैसी ही चीज़ें खानी पसंद होंगी. राइट. वो बोलेगा हाँ मुझे चना खिलाओ, ये खिलाओ, लाइक जो जिसमें के गैस ज़्यादा बनेगा. करेक्ट. बिकॉज उसका चॉइस वो है, सिमिलर चीज़ को अट्रैक्ट करेगी. एक कफ प्रधान को बोलेगा मुझे स्वीट बड़ा अच्छा लगता है यार खिलाओ. राइट. जबकि उसको पता है कि उसको स्वीट्स नहीं खाना है. बिकॉज एक लेवल तक जब बच्चा है तो वो सारी एनर्जी यूटिलाइज होती है उसको बनाने में, बड़ा बनाने में. राइट. तो तभी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है. बट जैसे ही हम 40s तक 30-40 तक आ जाते हैं जहाँ पर कि हम स्टेबल हो जाते हैं, फिर हमारे बॉडी का कुछ that's a time when we are just like this and after that we go like this. Right. So that time we need to balance it. Right. Then we have to start following actually to our dinacharya, rutucharya, seasonal diet and daily diet routines are there, which we need to follow from the beginning. But nevertheless कहीं पर तो हमें start करना ही पड़ेगा to maintain our own body and our emotionally also and physically also. Right. What I'm also understanding, Aarti, is there was a lot of intelligence and knowledge with which our ancestors conducted their life. The way they would eat food, what they would eat, when they would eat, even things that they would follow in terms of practices. But now with the modern lifestyle, we've all been thrown imbalance because all of that has changed.
what can we do today to balance some of the doshas that have been imbalanced due to our modern lifestyle and limited understanding? See, not that for everything we have to go to the doctor and see it. पहले एक ना बुक होते थे छोटे जिसके अंदर हम कहते थे घरचा वैद्य, यानी घर का डॉक्टर. Correct. Right? घर के नुस्खे. घर के नुस्खे कह लो, बिकॉज सब कुछ तो किचन में है. जब बड़ा प्रॉब्लम होता है तब बात करो. आपको पता है कि जब ठंडी के बाद में कफ बढ़ा है, कफ बढ़ने के बाद हमको निकालना कैसे है? कफ कहाँ है? यहाँ पर, राइट? पित्त यहाँ और वात उससे भी नीचे. सो अब कफ को निकालने के लिए वमन करना है. मतलब? जब वमन माने उल्टी करनी है, Oh, okay. बिकॉज कफ विल कम आउट, राइट? Right. तो आप जब भी आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, why not to take 2-3 glass of water, plain water. I am not saying नमक डाला हुआ पानी, plain water. 3 लो 4 लो, जितना आपको पी सकते हैं. गट गट करके पी जाओ, सिप सिप नहीं, फटाफट पी जाओ. जब तक होल्ड कर सकते हो कर लो. उंगली डालो, लेफ्ट हैंड को पेट पर रखो, फेंको पूरा कफ. खत्म हो गया. कफ एक्सेस था, कफ निकाला. सो एवरी सीजन टीचेस यू दैट. अब जब विंड बढ़ जाता है, जब जैसे जून जुलाई में विंड बढ़ने लगेगा, टेक बस्ती. बस्ती इज एनिमा, ऑयल एनिमा. या तो उस समय 1 स्पून आप तिल ऑयल पी लो तो उससे क्या होगा? रोज, तो उससे इंटेस्टाइन में जो विंड है वो अपने आप निकल जाएगा. दीज आर सिंपल थिंग्स, यू नो. वन Simple हैज for टू, you. For me, it's like new information. बट या somebody has to give it ना. Correct. people want to hear what WhatsApp is saying. अरे ये है वो है, हम तो पंचकर्मा के लिए एक ही बार चले जाओगे, उससे क्या होगा? सीजन तो हमेशा चेंज हो रहा है ना. Correct. उसका क्या करोगे? तो सीखो. पीपल आर सेइंग अरे पानी पीना ही नहीं है, या तो हैव प्लेंटी ऑफ वाटर. किसने बोला? वो ज़्यादा पानी पीने से भी गैस बढ़ता है. उसका क्या करते हो? पानी पीने का ही नहीं. आई डोंट वांट वाटर. खाने के टाइम पे पानी नहीं पीने. कौन बोलता है? कि कौन सा आयुर्वेदाचार्य टीवी पे आके बोला है कि पानी पीना नहीं है? So it's not wrong to have water with. No, you are khana? supposed to be sipping the water because it will as you change the taste. You know, एक अगर समझो कि आप सूप पी रहे थे और उस पे से अब आप खाने पर जा रहे हो, या तो आपने मीठा खाया है और आप एक टेस्ट चेंज कर रहे हो, बिकॉज यू आर सपोज टू बी ईटिंग स्वीट बिफोर, बिकॉज जठराग्नि पावरफुल है तो वो डाइजेस्ट कर लेगा. अब मुझे दूसरा कुछ खाना है, ठीक है, तो एक टेस्ट चेंज करना है मुझे. सो आई विल सिप one sip of water and that will add as a fuel. One second. Sorry, I'm going to stop you here because that means that we've been taught everything wrong. Dessert is not supposed to be had at the end. आपने बोला कि मीठा पहले खाना चाहिए, खाना खाने से पहले. Yeah. What goes wrong if you eat dessert after food? जठराग्नि इज प्रज्वलित, राइट? डाइजेस्टिव फायर. Correct. फायर जब बहुत फुल फॉर्म में होता है, तुम उसमें डालो, वो फटाक से जो पहला डालोगे उसको डाइजेस्ट कर लेगा. Correct. स्वीट इज हेवी, Correct. इसलिए तुमने उसको डाइजेस्ट कर दिया. अब धीरे धीरे आप हल्का डाल रहे हो उसके ऊपर, लेकिन पूरा खाना आपका खा के हो गया है, उसके ऊपर आपने हेवी डाल दिया. So it will just sit there. या सिंपल है. सी, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ऐसे ही समझना है हमने एनर्जीज को. And you were also explaining, so basically मैंने स्वीट खाया, हाँ. उसके बाद मुझे 1 सिप पानी पीना है. हाँ, स्वीट खाओ या कुछ भी खाओ. हाँ, मतलब sorry, इट इज जस्ट लाइक कि the when you are taste is switching. changing. Correct.